Assalamu alaikum. Welcome again to NEET Finishing Touch Series 2023. As we know, already we have completed chemical bonding and periodic properties. Now today we will be discussing two more chapters, that's hydrogen and S block. Now without wasting time, let's first start with the hydrogen. And this chapter is very easy chapter. You can get easily questions done in this chapter, provided that you will thoroughly go through the textbook. Like other chapters, we have kept this thing in the mind that we will cover all the NCERT concepts, NCERT points regarding this chapter. And all the types of questions, may it be matching type, may it be assertion reason, may it be multiple answer type, may it be single answer type, all the questions we will discuss it. Okay? So without wasting time, let's start with the hydrogen. Now, our first question goes like this. Let me first select the color. Our first question goes like this. In Clark's method, the chemical species added to hard water to remove its temporary hardness is. We know that hard water contains impurities. And as far as impurities are considered, they are categorized into two types. Our hardness of water is categorized into two types. First, we have temporary hardness and we have permanent hardness. Temporary hardness is because of the bicarbonates of calcium and magnesium. But permanent hardness is due to the presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium. We have different methods to remove temporary hardness and we have different methods to remove permanent hardness. So question about is temporary hardness. टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए इनमें से कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? टेम्परेरी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स MHCO3 whole twice. So in this method what we do, we add such a chemical species that converts this soluble bicarbonate to insoluble compound. So in this technique we are using lime water, that's calcium hydroxide. What calcium hydroxide will do, it will convert this metal bicarbonate to form insoluble carbonate. It results in the formation of MCO3, where M represents calcium or magnesium. So this compound, since it's soluble, when it reacts with lime water calcium hydroxide, it gets converted to insoluble metal carbonate. Since this is insoluble, it gets precipitated and hence can be removed. So the compound that can be used to remove the temporary hardness of water is calcium hydroxide. In case of magnesium, in addition to magnesium carbonate, we'll get one more compound, that's magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is also insoluble in water. It also gets precipitated out. So the compound that is used to remove the temporary hardness of water is calcium hydroxide. Let's move to the next point. Dihedral angle of hydrogen peroxide structure in gas phase is. As far as hydrogen peroxide is considered, hydrogen peroxide is very important compound regarding the chapter hydrogen. As far as hydrogen peroxide is concerned, इसका जो structure होता है, its structure is non-planar, non-linear, open book structure. So that will be like this open book structure. This is hydrogen peroxide structure where we have oxygen here, and we have hydrogen there, and we have hydrogen there. This is hydrogen peroxide structure. So it's like this. Oxygen, oxygen, hydrogen, hydrogen. Non-linear, non-planar, like open book structure like this. And dihedral angle. Dihedral angle is the angle between these two planes. It has got different values as far as solid state is considered or as far as gaseous form is considered. In gaseous form, this angle is found to be around 111 degree. But in case of solid state, this angle decreases and it gets around 97 degree. Now question asks that dihedral angle of hydrogen peroxide structure in the gas phases. So angle between these two planes
इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में जो एंगल है इसी को हम नाम देते हैं डाइहेड्रल एंगल। तो डाइहेड्रल एंगल जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का है वो गैस फेज में कितना है, इट्स अराउंड 111 डिग्री, बट इन सॉलिड स्टेट इट रिड्यूसेस टू अप टू 97 डिग्री। सो ऑप्शंस आर हियर। So dihedral angle of hydrogen peroxide in gas phase is 111.5 degree. ठीक है। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है नॉन लीनियर नॉन प्लेनर। सारे एटम्स एक ही प्लेन में नहीं होते, इट्स ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप लैपटॉप को फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, when calcium carbide and aluminum carbide react with heavy water separately, then the product obtained respectively are. We have got two compounds. First compound is calcium carbide, CaC2, and second compound is aluminum carbide, Al4C3. These are two compounds, calcium carbide, aluminum carbide. As far as calcium carbide and aluminum carbide are considered, if we go to the negative part of the calcium carbide, calcium oxidation state +2, carbon C2 will be in the form of C2 dinegative. तो इसमें जो कार्बाइड है that exists in the form of C2 - 2. And in case of aluminium, if we take total, aluminium का oxidation state +3 होता है, into 4 हो गया +12, तो इसका मतलब कार्बन होगा -12। अब देखिए 3 कार्बन -12, तो एक कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -4. So here carbon exists in the form of C2 - 2, but here carbon exists in the form of C - 4. अब अगर हम इसको हेवी वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, हेवी वाटर इज D2O. So there will be simple phenomenon of hydrolysis, that is D2O will split in the form of D positive and OD negative. ये हो गए इसके hydrolysis ions, D positive and OD negative. So as far as calcium carbide is considered, when it reacts with D2O, calcium +2, carbon -2, definitely. So D positive will go with the negative part, इसके साथ D positive जाएगा, and OD will go with calcium dipositive. So calcium dipositive जो प्रोडक्ट बनाएगा वो होगा CaOD whole twice, calcium deuteroxide, and second जो हमारा C2 नेगेटिव होगा ये D पॉजिटिव के साथ बनाएगा C2D2, deuterated acetylene, that is simply deuterated acetylene, C2D2. इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा. दिस इज सिंपली एसिटिलीन, बट एसिटिलीन में हाइड्रोजन के बदले ड्यूटीरियम है, सो इट इज ड्यूटीरेटेड एसिटिलीन. सो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन केस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज C2D2. नाउ इफ वी गो टू दिस पार्ट Al4C3, Al4C3 कंटेन्स कार्बन इन द फॉर्म ऑफ C-4. तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, इफ वी डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, इसको D2O के साथ रिएक्ट कराएंगे. एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये बनाएगा AlOD होल थ्राइस, प्लस कार्बन क्योंकि -4 में है तो -4 के साथ 4D जाएंगे, ये बनेगा CD4. And what is CD4? It is simply methane. मीथेन में हाइड्रोजन के बदले D है, तो इसका मतलब ड्यूटेरेटेड मीथेन. तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा CD4, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ गया दैट C2D2, इसको हम कहते हैं एसिटिलाइड और इसको हम कहते हैं मिथेनाइड. सो Al4C3, this type of carbide is called as methanide. It's called as methanide. And this type of carbide is called as acetylide. इसको हम कहते हैं acetylide because it produces acetylene, but it produces methane. इसको methanide कहते हैं. फर्क ये है कि deuterated products है, तो products formed are C2D2, deuterated acetylene and deuterated methane. तो इसका मतलब है इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन. ठीक, this is simple hydrolysis reaction. Next, when carbon monoxide reacts with hydrogen in presence of cobalt catalyst, then the organic product obtained is one of the important reaction.
कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट एज अ कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पे, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ये रिएक्शन ऑर्गेनिक में भी लिखी हुई है, यही रिएक्शन हाइड्रोजन चैप्टर में 2-3 जगह मेंशन हुई है. So important reaction, it results in the formation of very important compound, and that important compound is CH3OH, that's methanol. When we will do oxidation of carbon monoxide, sorry, when we will do oxidation of hydrogen by carbon monoxide in presence of cobalt at high temperature, you will get the formation of methanol. ये important organic product बनता है. This is also one of the synthesis of carbon, one of the synthesis of methanol. तो इसमें जो product आ जाएगा वो होगा methanol. That's option first. Let's move to next question. In water gas shift reaction, the products formed are. Water gas shift reaction is very important reaction. We have got a term called as water gas. Water gas is combination of carbon monoxide and hydrogen. इस combination को हम नाम देते हैं water gas और syngas. इसको हम water gas या syngas कहते हैं. ठीक है. अब water gas shift reaction क्या होती है? In order to increase the production of hydrogen, carbon monoxide is treated with steam, high temperature पे. It results in the oxidation of carbon monoxide to carbon dioxide plus hydrogen gas is formed. This type of reaction is called as water gas shift reaction. Water gas shift reaction. And it is a reduction reaction, it's a redox reaction. Carbon +2 से +4 पे जा रहा है, हाइड्रोजन +1 से 0 पे जा रहा है. So हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है, बिहेव कर रहा है. वाटर बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट ऑक्सीडाइजेस कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका यूज जो होता है, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, विद स्टीम at high temperature, resulting in the formation of carbon dioxide and hydrogen. Now let's go to our question. In water gas shift reaction, the products formed are, कौन से products water gas shift reaction में बनते हैं? And obvious है, it is carbon dioxide and hydrogen. तो इसका जो product होगा, ये होगा carbon dioxide and hydrogen. ठीक. Now let's move to next reaction. Match the following and identify the correct options. Matching type question. ठीक. तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन में ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड, राइट साइड है, इनको मैच करना होगा. बिल्कुल आसान है. कैल्शियम हाइड्राइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है. यहां से आयनिक हाइड्राइड है, यहां से कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट है, और यहां से वाटर गैस है. तो अब आपको ये देखना है इनमें से कौन सा पार्ट इसके साथ एसोसिएटेड है. सॉरी, क्योंकि इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं स्किप कर गया. परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, कैल्शियम हाइड्राइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पर H2O2. परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर arises because of the presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium, जैसे भी पहले मैं कह चुका. So permanent hardness होता है because of the presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium. ठीक है. तो अब permanent hardness में chlorides and sulfates of calcium and magnesium, अब देख लीजिए, ये है कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम और सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम. इसका मतलब permanent hardness of water एसोसिएट होगा इसके साथ. सेकंड, कैल्शियम हाइड्राइड. कैल्शियम हाइड्राइड इज द प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम एंड हाइड्रोजन. ये कैल्शियम और हाइड्रोजन का प्रोडक्ट है. तो कैल्शियम हाइड्राइड, इट्स हाइड्राइड. अब कौन सा हाइड्राइड है? क्योंकि S ब्लॉक है तो बॉन्डिंग जो होगी वो आयनिक बॉन्डिंग होगी. तो इसका मतलब है कैल्शियम हाइड्राइड इज एन आयनिक हाइड्राइड. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, उसको हम कहते हैं वाटर गैस या सिन गैस, व्हाटएवर, वाटर गैस. हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
hydrogen peroxide is used as an oxidizing agent under the name of trade name of या market name perhydrol. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका जो मार्केट नेम है दैट्स परहाइड्रॉल. ये हमने मैचिंग कर दिया. अब जरा देख लीजिए ए किसके साथ मैच हो रहा है, 3 के साथ. ए मैच हो रहा है 3 के साथ. यहाँ तो कोई ऑप्शन है, आई थिंक देयर शैल बी अ मिस्टेक. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बी इज मैचिंग विद सेकंड, फिलहाल ये आ रहा है. सी वाटर गैस 4 के साथ, C4 के साथ, सही है. एंड डी फर्स्ट के साथ. इसका मतलब ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर होगा, यहाँ 2 के बदले होना चाहिए था 3. ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन. तो हमें ऑप्शंस खुद ब खुद आ जाएंगे जब हमने मैचिंग की. सो permanent hardness of water arises due to the presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium. Calcium hydride, it is an hydride. The hydrides ionic होते हैं, covalent होते हैं, interstitial होते हैं. Calcium hydroxide is a type of ionic hydride. Carbon monoxide and hydrogen is the combination, and इस type की combination को हम नाम देते हैं water gas या syngas. And hydrogen peroxide is used as an oxidizing agent under the market name of perhydrol. तो ये इसका matching हो गया. Let's move to next question. Temporary hardness of water can be removed by, again, hardness of water. So hardness of water is very important topic as far as NEET is considered. Temporary hardness is due to the presence of bicarbonates of calcium and magnesium. And permanent again because of the presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium. Now question arises, जो temporary hardness है वो किस तरीके से remove किया जाता है? Temporary hardness में क्योंकि bicarbonates है, and we know that if we heat bicarbonate, अगर हम metal bicarbonate को heat करते हैं, ये X times होगा, it decomposes to form metal carbonate. ठीक? If this metal carbonate is insoluble, it gets precipitated. Precipitate हो जाएगा. We know that temporary hardness arises due to the presence of bicarbonates of calcium and magnesium. तो अगर आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट कर लेते हो, डिकम्पोज हो जाएगा, बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट. बोथ कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे गेट प्रेसिपिटेटेड. इस वजह से हम क्या करते हैं, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम वाटर को बॉईल करते हैं एट हाई टेम्परेचर. एज अ रिजल्ट आप जो उसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं, टेम्पररी हार्डनेस होते हैं, दे डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट्स ऑफ calcium and magnesium. As a result they get precipitated out in the form of carbonates. तो ये प्रोडक्ट बनेगा. So temporary hardness रिमूव करने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक्स यूज नहीं करते, हम सिंपल बॉइलिंग करते हैं. तो इसका होगा बॉइलिंग. और ये जो आयन एक्सचेंज है, वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीटमेंट, Kelgan's मेथड है, these are used to remove body naughty impurities that make up the permanent hardness of the water, that's chlorides and sulfates. So simple टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम इसको बॉइलिंग कर सकते हैं. और ये कॉमन एक्सपीरियंस है, अगर आप वाटर को बॉइल कर लेते हो, बॉइलिंग के बाद अगर आप वाटर को हम थोड़ा सा ठंडा करने के लिए वाटर को ऐसे रखते हैं, वाइट कलर particles settle down at the water, that is due to the presence of carbonates of calcium and magnesium. Next question. Which of the following statement about dihydrogen is correct? कौन सा स्टेटमेंट डाइहाइड्रोजन के लिए करेक्ट है? ठीक, इट इज हाईली कंबस्टेबल. ऑब्वियस है, हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू बर्न ऑफ इट्स ओन. ये कंबस्टेबल गैस है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिडक्शन इज नेम्ड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट है. Hydrogen is used as a reducing agent and addition of hydrogen is called as reduction. सही statement है. It is used as a rocket fuel. Obvious, definitely. Hydrogen का जो calorific value है, it's the most efficient fuel. But the problem is transportation of hydrogen. So rocket fuels में, rockets में, hydrogen is used as one of the fuel. It combines with oxygen to form water, and water is used for drinking purposes in rockets or astronauts में.
ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हाइड्रोजन कैन यूज इट बी एज अ रॉकेट फ्यूल। फोर्थ, इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी लो। नो भैया, ये पूरा गलत स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट्स around 435 kilojoules per mole and this is high bond strength. तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इट्स वेरी हाई, इट इज नॉट वेरी लो। सिंगल बॉन्ड के लिए 435 किलो जूल्स, इट्स वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो ये कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है आउट ऑफ 4 स्टेटमेंट्स 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब जरा हम क्वेश्चन पे जाते हैं, which of the following statements about dihydrogen is correct? I think it should be, is not correct या is incorrect। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर होगा। So out of 4 options, 3 options are perfectly correct and only 1 option is incorrect, that is 4। इसकी bond dissociation energy very low नहीं होती, very high होती है, तो इसका ऑप्शन होगा 4th one। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको लिखा है इट इज नॉट करेक्ट या इज इनकरेक्ट। सो 3 करेक्ट है, चौथा इनकरेक्ट है। तो दीज प्रिंटिंग मिस्टेक्स कैन हैपन। नेक्स्ट पॉइंट, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 0.5 मोलर हाइड्रोजन, it should be hydrogen peroxide again। solution is, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, दैट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड व्हेन डिकम्पोजेस इट फॉर्म्स वाटर प्लस ऑक्सीजन। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते, इट इज 2 टाइम्स देयर, इट्स 2 टाइम्स देयर, 2 into 2 हो गया 4, 2 and 2 हो गया 4। ठीक है, नाउ in this reaction 2 moles of hydrogen peroxide decompose to give 1 mole of oxygen। ठीक, now volume strength का मतलब क्या होता है? volume strength is number of volumes of oxygen produced by 1 mole of hydrogen peroxide, by 1 volume, not 1 mole, by 1 volume of hydrogen peroxide on decomposition at STP or NTP। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब एक वॉल्यूम डिकम्पोज होगा तो कितने वॉल्यूम्स ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होंगे एट एसटीपी, एसटीपी कंडीशंस पे कितना प्रोड्यूस होगा। सो ये है number of volumes of oxygen produced by 1 volume of hydrogen peroxide on decomposition at STP। तो अगर हम थोड़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात कर लेंगे, इफ suppose 1 liter of hydrogen peroxide gives 5 liters of oxygen। suppose अगर हाइड्रोजन का 1 लीटर 5 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रेंथ होगी 5 वॉल्यूम्स। अगर 1 लीटर प्रोड्यूस करेगा 10 liters of hydrogen peroxide, then volume strength is 10। If it produces X volumes, X liters, then volume strength is X volume। So 5 volume hydrogen peroxide means 1 liter of hydrogen peroxide or 1 volume of hydrogen peroxide will produce 5 volumes of oxygen। 10 volume hydrogen peroxide means 1 volume of hydrogen peroxide will produce 10 volumes of oxygen। 50 volumes of hydrogen peroxide means 1 volume of hydrogen peroxide will produce 50 volumes of oxygen। So hydrogen peroxide एक वॉल्यूम कितने ऑक्सीजन के वॉल्यूम्स प्रोड्यूस करेगा, वही बनेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सो इफ वी हैव x वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर हमारे पास x वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका मतलब सिंपली है 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड will give x volumes of oxygen or 1 liter of hydrogen peroxide can give x liters of oxygen। ये है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब क्वेश्चन है, यहां मोलैरिटी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, as far as molarity and volume strength is considered,
इनके बीच में एक रिलेशन है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 2 into V divided by 22.4. ये है सिंपल रिलेशन बिटवीन दिस, ये याद रखोगे. Molarity of hydrogen peroxide. I will not go to the derivation of the equation. This is not the time to show the derivation. It's time to solve the question. Molarity is equal to 2 into V, where V represents volume strength into 22.4. M is molarity. M molarity hai. And V is volume strength. So if molarity is given, you can determine volume strength. If volume strength is given, you can determine molarity. तो अगर हम बात कर लेंगे इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की, what is given, we are being provided with molarity. You have to determine volume strength. So molarity is 0.5 is equal to 2 into V, volume strength निकालना है, divided by 22.4. ठीक है, which implies V will be equal to 0.5 into 22.4 divided by 2. ठीक, तो अगर हम बात कर लेंगे 0.5 into 22, that's equal to 11.2 divided by 2. That's around 5.6. 5.6 के आसपास होगा. So 11.2 divided by 2, यहाँ पे 6.72 और 5.04. तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो. You can solve this question. 11.2 divided by 2, तो ये अराउंड आ जाएगा 5.6 के आसपास. ठीक है, बट रिमेंबर दैट टेक्स्ट बुक ने मेंशन किया है 22.4 के बदले 22.7. So it is 0.5 into 22.7 divided by 2. तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए. आई थिंक 0.5 into 22.7, तो ये बनेगा 11.35 divided by 2. ठीक, so 11.35 divided by 2, तो ये बनेगा 5. तो ये आ जाएगा 5.7 के आसपास. अब देख लीजिए इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा. यू कैन सॉल्व दिस इधर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, क्योंकि ये क्लोज ऑप्शंस है. इनमें से जो ज्यादा क्लोज ऑप्शन होगा आप उसी को टिक करोगे. मेरे हिसाब से ये आ जाएगा कुछ पार्ट ऑप्शन नंबर 2, इसके क्लोज आ जाएगा. सो अगर हम 22.4 liters, you know that where's the difference between 22.4 liters and 22.7 liters. If you take 1 bar pressure, then it's 22.7. If you take 1 atmosphere pressure, then it's 22.4. ठीक है, तो 22.4 is for 1 atmosphere pressure and 22.7 is for 1 bar pressure. ठीक है, तो टेक्स्ट बुक ने क्योंकि मेंशन किया है 22.7, सो यू कैन यूज दिस इक्वेशन. 22.4 के बदले 22.7 आप ले सकते हो. इनमें से जो ऑप्शन ज्यादा क्लोज आ जाएगा उसी ऑप्शन के साथ आप जाइएगा. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ. चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13 एक्ट एज लिविस एसिड्स. Group 13 बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ऑब्वियसली है जब ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, सपोज ये बनेगा BH3 बनेगा AlH3, वी नो दैट बोरॉन हाइड्राइड एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म डाइमेरिक फॉर्म में. ये बनाता है B2H6 डाइबोरेन, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होते हैं बिकॉज इनमें से बोरॉन, एल्यूमिनियम या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है. एज अ रिजल्ट दे हैव द टेंडेंसी टू बिहेव एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. तो ये बिहेव करते हैं एज लिविस एसिड्स, बिहेव करते हैं एज लिविस एसिड. Option 2, hydrides of group 14 are electron deficient hydrides. Now, group 14 carbon family, कार्बन का सिंपल हाइड्राइड बनेगा CH4, सिलिकॉन का SiH4. इनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है. As a result of that, they behave as electron precise. इनमें बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन precise. They are not electron deficient hydrides. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है.
हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 एक्ट एज लिविस एसिड्स। ग्रुप 14 नो, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, सो दे विल नॉट एक्ट एज लिविस एसिड्स। ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एक्ट एज लिविस बेसिस। ग्रुप 15 इज नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन का हाइड्राइड बनता है NH3, फॉस्फोरस का बनेगा PH3, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों के पास लोन पेयर है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर दे हैव द टेंडेंसी टू बिहेव एज लिविस बेसिस। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट एंड 4 आर करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट स्टेटमेंट, दैट्स A एंड D। ये होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फिर से करेक्ट है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। अभी हमने लिया इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 रेफरेंस के लिए अमोनिया। क्या ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? नो। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इन एडिशन टू दैट लोन पेयर। नाइट्रोजन इन एडिशन टू कंप्लीट ऑक्टेट, नाइट्रोजन आल्सो कंटेन्स लोन पेयर। इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन एक्सेस हाइड्राइड्स। तो ये डेफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, परफेक्टली करेक्ट। CH4, दिस इज द रेफरेंस एग्जांपल। CH4 मीथेन में 4 कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा हाइड्रोजन के साथ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। जितनी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट के लिए उतनी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज होते हैं, ये परफेक्टली करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड्स हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज। ये इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज है, इसका स्टीरिक नंबर बनेगा 4+0, दैट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, तो ये भी परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कैन एक्ट एज लिविस एसिड्स। इलेक्ट्रॉन रिच नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि लोन पेयर भी होता है, तो लोन पेयर की वजह से ये बिहेव करते एज लिविस बेसिस, नॉट लिविस एसिड्स। तो इसका मतलब ये लिविस बेसिस होते हैं, लिविस एसिड्स नहीं होते। ये परफेक्टली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो आउट ऑफ 4 स्टेटमेंट्स ऑप्शन B एंड ऑप्शन C आर करेक्ट, यानी ग्रुप 14 फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड्स और उनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो इसका मतलब है इसका परफेक्ट ऑप्शन होगा B एंड C। ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। Next point, hardness of water may be temporary or permanent. Permanent hardness is due to the presence of, 5वीं बार ये पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। Permanent hardness is because of naughty impurities, that's sulfates and chlorides of calcium and magnesium। ठीक है, जरा फर्स्ट ऑप्शन chlorides of calcium and magnesium डेफिनेटली सही है। सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डेफिनेटली ये भी है। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स नो, ये टेम्पररी हार्डनेस होती है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल, वो तो सॉल्युबल होते हैं, तो ये हार्डनेस नहीं बनाते। सो हार्डनेस आर क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसका मतलब A एंड B आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिस्क्राइब्ड बिलो। ठीक, which of them is or not correct? तो कौन इनकरेक्ट है? इनमें से कौन इनकरेक्ट है? पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट्स। वाटर इज नोन टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हार्ड फैक्ट है। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्ट, मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। Hydrogen bonding is present to a large extent in liquid water. Definitely water has a tendency to show hydrogen bonding because hydrogen is attached to oxygen and oxygen also contains lone pair. So obviously water में hydrogen bonding होगा. There is no hydrogen bonding in the frozen state. Incorrect statement भैया, frozen statement ice में तो बहुत ज़्यादा extensive hydrogen bonding होती है. In case of ice, every oxygen is tetrahedrally surrounded by 4 hydrogen, 2 because of normal covalent bonds and 2 because of hydrogen bonds. तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फ्रोजन वाटर इज हेवियर देन लिक्विड वाटर, भैया ये स्टेटमेंट भी गलत है। जनरली सॉलिड और लिक्विड में सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है,
हेवियर होता है सॉलिड, लेकिन आइस में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर. एज अ रिजल्ट आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. सो फ्रोजन वाटर इज नॉट हेवियर देन लिक्विड वाटर, इट इज लाइटर देन हेवियर वाटर. इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. सो आइस, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है. आइस इज लाइटर देन वाटर, नॉट हेवियर देन वाटर. इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सी एंड डी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. Let's move to the next. Which of the following is used for water softening? वाटर सॉफ्टनिंग में कौन कौन सा कंपाउंड हम यूज करते हैं? ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर. ठीक है, जैसे टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए बॉइलिंग यूज करते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं. परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, zeolites यूज करते हैं, resins यूज करते हैं. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस, दैट्स कॉल्ड एज कैलगॉन, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, और उसकी फार्मूला होती Na6P6O18. इसको कहते हैं कैलगॉन, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट. तो इसमें क्या होता है, ये कैसे हार्डनेस को रिमूव कर लेता है? इट एक्सचेंज सोडियम विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस. ये सोडियम को एक्सचेंज करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम द वाटर, कन्वर्टिंग हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर. तो इनमें से जो कंपाउंड यूज किया जाता है, ये नहीं यूज किया जाता, ये नहीं यूज किया जाता, ये नहीं यूज किया जाता, दिस कंपाउंड, और इसी कंपाउंड को हम नाम देते हैं कैलगॉन. कैलगॉन कैसे करता है? ये सोडियम को एक्सचेंज करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ. तो सोडियम बाहर जाते हैं, इसके बदले कैल्शियम और मैग्नीशियम एंटर कर जाते हैं, इसको बाद में रिमूव किया जाता है. दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड एज कैलगॉन टेक्निक, कैलगॉन मेथड. तो इसमें क्या करते हैं, जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है उसको रिमूव करने के लिए हम कैलगॉन ऐड करते हैं. कैलगॉन क्या करता है, ये सोडियम को वाटर में डालता है, और सोडियम की वजह से ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को वाटर से बाहर निकाल देता है. दिस कंपाउंड इज यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर. नेक्स्ट वन, elements of which of the following groups of periodic table does not form hydrides? Hydrogen reacts with nearly all the elements of periodic table to form hydrides. लेकिन कुछ elements ऐसे हैं, particularly transition elements, which do not have the tendency to form hydrides. वजह इनका है, उनके crystal structures ऐसे that does not allow them to get involved in hydride formation. और वो कौन से hydrides होते हैं? That is group number 7, 8 and 9. In fact, group number 6 भी hydride नहीं बनाता है. Group number 6 में खाली chromium hydride बनाता है. So 7, 8 and 9, these elements do not form hydrides. उसको कहते हैं hydride gap. ये सारे के सारे transition elements हैं. इनका top element जो है मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ये तीन फैमिलीज हाइड्राइड्स नहीं बनाते. और उससे पहले खाली क्रोमियम हाइड्राइड बनाता है ग्रुप नंबर 6 में, बाकी हाइड्राइड नहीं बनाते. ग्रुप 13 बोरान फैमिली हाइड्राइड्स बनाते हैं, डाइबोरिन एग्जांपल. 15, 16, 17, 15 में नाइट्रोजन, अमोनिया, 16 में ऑक्सीजन, वाटर, 17 में फ्लोरीन, HF बनाता है. ग्रुप 14 मीथेन, कार्बन के तो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं. सो दोज एलिमेंट्स व्हिच डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स, दैट्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following reaction is an example of use of water gas in the synthesis of another compound? किस रिएक्शन में वाटर गैस यूज होता है इन द सिंथेसिस ऑफ अनदर कंपाउंड? वाटर गैस, एज वी नो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, या जिसको सिन गैस भी कहते हैं. तो यहाँ मीथेन और वाटर है, दिस इज नॉट वाटर गैस. यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर है, जिसको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं. नो. यहाँ पे हाइड्रोकार्बन और वाटर है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द वाटर गैस. सो ओनली वन रिएक्शन दैट कंटेन्स वाटर गैस इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. कोबाल्ट कैटालिस्ट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, जब हम इनको रिएक्ट कराते हैं इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, वो होता है मेथनॉल. तो यहाँ CH2 के बदले CH3OH है. सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. Water gas is used in the synthesis of organic compound. That organic compound is methanol, using cobalt as a catalyst at high temperature.
Next point, hydrogen peroxide is used as oxidizing agent, reducing agent, both or none. ठीक है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मूला H2O2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पेरोक्साइड में -1 है, ऑक्सीजन का जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है. Higher oxidation state oxygen can move up to +2 only with the fluorine, but can at least to go to 0. Hydrogen peroxide has got tendency to get converted to both oxygen as well as water. जब ये ऑक्सीजन में जाएगा -1 to 0, इसका मतलब इसको खुद हो रही है ऑक्सीडेशन, तो ये बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. -1 to -2 इसको खुद रिडक्शन हो रही है तो बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो इसका मतलब है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को टेंडेंसी है टू बिहेव बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये दोनों बिहेव करता है, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट, hydrogen resembles halogens in many respects, for which several factors are responsible. Out of the following factors, which is the most important in this respect? We know that hydrogen की properties दो families के साथ मैच होती है. एक तो alkali metals के साथ यानी ग्रुप 1 और दूसरा halogens के साथ. वजह सिंपल है, alkali metals बिहेव करते हैं as +1. हाइड्रोजन also has the tendency to exist in the oxidation state of +1. Halogens behave karte in the oxidation state of -1. So hydrogen also has the tendency to exist in the oxidation state of -1. तो halogens के साथ जो resemblance है that arises because of negative oxidation state. अब इनमें से देख लेते. Its tendency to lose an electron. No, अगर hydrogen electron lose करेगा, it's converted to H positive. That is not similarity with the halogen. That is similarity with alkali metals. Its second है, its tendency to gain a single electron in its valence shell to attain stable electronic configuration. ये तो ठीक बैठ रहा है. जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s1. जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, it becomes 1s2. It gets noble gas. Its shell gets a complete shell. Its configuration becomes helium configuration. As a result, it attains stability on going from H to H negative. इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इट्स लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू. नो, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू कम है तब इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं होगी, बट इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी वो बहुत ज्यादा है. इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन एंथैल्पी. इट्स स्मॉल वैल्यू. स्मॉल वैल्यू भी इफेक्ट कर सकता है डेफिनेटली. स्मॉल वैल्यू जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, बट स्मॉल साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इट्स टेंडेंसी टू गेन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो H negative resembles X negative. It is because of tendency to gain an electron so that its valence shell gets completed. So second option is the correct option. Next one, match the terms in column 1 with relative items in the column. Matching. यहां से पहले पढ़ लेते हैं कॉलम 1, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं, क्या प्रोडक्ट्स? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज यूज्ड एज, ऑर्गेनिक में तो बहुत सारा यूज होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl. क्या है? हेवी वाटर इज यूज्ड इन, हेवी वाटर का यूज कहां पे? एटॉमिक हाइड्रोजन कहां पे यूज होता है? हेवी वाटर कहां पे यूज होता है? जरा यहां से चेक कर ले. एटॉमिक रिएक्टर, तो कोई इनमें से एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज होता है. पोलर मॉलिक्यूल, इनमें से कोई एक कंपाउंड ऐसा जो पोलर है. रिकम्बाइंस ऑन अ मेटल सरफेस टू जनरेट हाई टेम्परेचर, कोई कंपाउंड यहां से ऐसा है जो मेटल सरफेस पे रिकम्बाइन होता है, एब्जॉर्ब होता है, दैट जनरेट्स हाई टेम्परेचर. रिड्यूसिंग एजेंट कोई है, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, ऑब्वियसली इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Hydrogen is produced at cathode and oxygen is produced at anode. So electrolysis of water will produce hydrogen and oxygen. Simple है. Lithium aluminum hydride, very important compound. Organic में lithium aluminum hydride is used one of the strong oxidizing agents. ये alkyl halides, aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, acid chlorides, acid amides, cyanides, सभी compounds को reduce कर लेता है. So lithium aluminum hydride is used as a strong reducing agent. Hydrogen chloride, HCl, इसकी क्या खासियत है?
हाइड्रोजन क्लोराइड ऑब्वियसली है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इट बिहेव्स इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। HCl is a polar molecule. Heavy water is used in, heavy water use होता है atomic reactors में to slow down fast moving neutrons. तो heavy water का use atomic reactors में होता है to slow down the fast moving neutrons, and atomic hydrogen recombines on metal surface. Atomic hydrogen is nascent hydrogen. इसकी स्ट्रॉन्ग कंबाइनिंग टेंडेंसी होती है, जब मेटल सरफेस पे एब्सॉर्ब होता है, दैट प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, एज अ रिजल्ट इट जनरेट्स हाई टेम्परेचर। तो ये मैचिंग है। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ पोलर मॉलिक्यूल। हेवी वाटर इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स, बहुत सारा यूज इसका है, और एटॉमिक हाइड्रोजन रिकम्बाइंस ऑन मेटल सरफेस टू जनरेट हाई टेम्परेचर। Let's move to the next. फिर से मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे कि अभी पहले 2 क्वेश्चंस में आ चुका है, इट बिहेव्स बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कमर्शियली यूज्ड इन द नेम ऑफ परहाइड्रोल। ये परहाइड्रोल। व्हाट इज यूज्ड इन कैल्गन मेथड? कैल्गन मेथड अभी मैंने डिस्कस किया, एक कंपाउंड कॉल्ड एज कैल्गन इज यूज्ड इन कैल्गन मेथड, और उसका नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो सोडियम कैल्गन मेथड में सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज होता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर इज रिमूव्ड बाय, हार्ड वाटर में परमानेंट हार्डनेस होती है, तो उसको किस किस तरीके से रिमूव कर लेते हैं? देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, जैसे कैल्गन मेथड है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा है, जैसे रेजिन्स है, जैसे जियोलाइट्स है। सो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय जियोलाइट, या जियोलाइट से रिमूव कर सकते हैं। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर द नेम ऑफ परहाइड्रोल, यूज्ड इन कैल्गन मेथड। कैल्गन मेथड में जो कंपाउंड यूज होता है उसका नाम ही कैल्गन है, दैट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। एंड थर्ड, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय जियोलाइट। इसका मतलब प्रोपेलेंट किसी के साथ मैच नहीं होगा, तो ये परफेक्ट मैचिंग है। This is the solution of this question. Now, question number 21, assertion reason. Assertion statement देखेंगे, permanent hardness of water is removed by treatment with washing soda. Definitely. तो washing soda क्या करता है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को जब हम वॉशिंग सोडा के साथ यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये कन्वर्ट होते टू इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। सो पहला स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, परफेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एंड देन कन्वर्ट दीज आयंस टू देयर इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद सॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सल्फेट्स to form their insoluble carbonates. यही तो रीजन मैंने बता दिया। तो इसका मतलब है रीजन भी परफेक्ट है, assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. इसका मतलब बोथ assertion रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. तो इसका मतलब है इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। Some metals like platinum and palladium can be used as a storage media for hydrogen. Definitely. Transition metals have strong tendency to absorb gases on their surface. It is main factor responsible because of their high density. उनके surface atoms जो होते हैं, they have strong affinity for the gases. As a result, they have tendency to absorb gases on their surface. और उनमें से एक best example है absorption of hydrogen gas that's used to carry out the reductions, catalytic reduction. So they can behave as storage media for hydrogen because of their strong absorption tendency. तो assertion हमारा perfectly correct है। अब reason देख लीजिए, platinum and palladium can absorb, it's not absorb, sorry, it's absorb large volumes of hydrogen. Definitely ये large volumes of hydrogen absorb कर लेते हैं। इसका मतलब assertion भी सही है, reason भी सही है, and reason is the correct explanation of assertion. Platinum, palladium, nickel, etc. they can be used as a storage media for hydrogen. क्यों?
क्योंकि उनमें टेंडेंसी होती है टू एब्सॉर्ब लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन. Assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation of the assertion. इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है. Let's move to 23. Metal hydrides are ionic, covalent, or molecular in nature. Among the following, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, the correct order of increasing ionic character is. इनका ionic character क्या होगा? इसको हम उल्टा कर लेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर. सिंस ये एस ब्लॉक हाइड्राइड्स है, these are S block hydrides. S block hydrides में जो बॉन्डिंग होती है दैट्स आयनिक बॉन्डिंग. लेकिन आयनिक बॉन्डिंग में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, और वो कोवेलेंट कैरेक्टर हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फजान्स रूल्स. फजान्स रूल्स के बेसिस पे कैटायन शुड बी स्मॉल एंड एनायन शुड बी लार्ज. ठीक, जहां कैटायन स्मॉल होगा, एनायन लार्ज होगा, तो उसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर होता है. अब जरा देख लेते हैं, इनमें एनायन तो हर जगह हाइड्राइड ही है, खाली कैटायन वेरी कर लेता है. इसका मतलब हमें कैटायन यूज करना है. जहां कैटायन स्मॉल होगा उस हाइड्राइड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना आयनिक कैरेक्टर कम होगा. तो मैं कह सकता हूं ना, स्मॉल कैटायन directly proportional to covalent character and that's inversely proportional to ionic character. जहां covalent character ज्यादा होगा वहां ionic character कम होगा. तो जो छोटा कैटायन होगा उसका covalent character ज्यादा होगा और वहां पे ionic character कम होगा. अब छोटा कैटायन कौन सा है इनमें से? लिथियम. तो लिथियम में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा लेकिन आयनिक कैरेक्टर कम होगा. और इसका अपोजिट सीजियम जो बड़ा कैटायन है वहां कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा लेकिन आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. तो सीजियम में कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है. लिथियम में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर कम है. तो लिथियम इज मोस्ट, सो आई विल से लिथियम हाइड्राइड ये होगा मोस्ट कोवेलेंट, बट सीजियम हाइड्राइड विल बी मोस्ट आयनिक. तो हमें आयनिक कैरेक्टर देना है. सीजियम हाइड्राइड विल बी द टॉप, सीजियम हाइड्राइड होना चाहिए टॉप पे, आयनिक कैरेक्टर सीजियम हाइड्राइड टॉप पे और लिथियम हाइड्राइड सबसे एंड पे. तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज 2. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक कैरेक्टर. लेकिन अगर कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होना चाहिए था, दैट्स लिथियम हाइड्राइड टॉप पे और सीजियम हाइड्राइड सबसे एंड पे. लेकिन क्वेश्चन ने पूछा आयनिक कैरेक्टर इज directly proportional to the size but inversely proportional to the polarizing power. तो लिथियम में क्योंकि पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है, इसके हाइड्राइड में मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा. सीजियम का पोलराइजिंग पावर कम है, इसके हाइड्राइड में सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा. तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 24. तो क्वेश्चन नंबर 24 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस. इनमें रिएक्शंस देखना है और इन रिएक्शंस से हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखना पड़ेगा. सो एज फार एज फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस HI. अब यहां देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पे वाटर में -2 है. -1 to -2 is reduction, so it will behave as an oxidizing agent. तो यहाँ पे इसको इधर से भी प्रूव कर सकते हैं. ये -1 है 0, so iodine has been oxidized from -1 to 0 और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिहेव कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दूसरा केस -2 -1, यहाँ -1 to 0 जा रहा है, -1 to 0 इज ऑक्सीडेशन, तो बिहेव कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट. ये बिहेव कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. सो HOCl प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम -1 to 0, so it will behave as it itself undergoes -1 to 0 reduction. -1 to 0 it itself undergoes oxidation, so it will behave as a reducing agent. So पहली रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरे में reducing agent. ठीक है. So अब which of the following statements correct about with respect to these reactions? As an oxidizing agent both in A and B, no. पहले में ऑक्सीडाइजिंग दूसरे में रिड्यूसिंग. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन A, definitely पहले में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
एंड दूसरे में रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही जा रहा है. एज रिड्यूसिंग एजेंट इन ए एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बी, नो, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ ए एंड बी, नॉट डेफिनेटली. इसका मतलब है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड. पहले में हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन से -1 to -2 जा रहा है, इसको खुद रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दूसरे में -1 to 0 जा रहा है, इसको खुद हो रही है, ऑक्सीडेशन बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो इन फर्स्ट रिएक्शन इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इन सेकंड इट बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ लेट्स गो टू द आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, the oxide that gives hydrogen peroxide on treatment with dilute sulfuric acid. Metal oxide MXOY plus H2SO4 ये देना चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, that gives hydrogen peroxide. ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड तभी पॉसिबल है जब ये मेटल ऑक्साइड पेरोक्साइड हो. सो दिस शुड बी पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड होना चाहिए. So it means that metal peroxide react with acids, particularly sulfuric acid, to give hydrogen peroxide. This is a reaction. Those oxygen compounds which on reacting with acid give peroxides are also called as peroxides. PbO2, this compound is lead dioxide. इसमें lead का oxidation state +4 है. So it is lead dioxide, it's not a peroxide. MnO2, manganese का oxidation state +4, it is manganese dioxide. टाइटेनियम +4, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये तीनों के तीनों डाइऑक्साइड है. अब अगर हम बैरियम की बात करेंगे, बैरियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 2 का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो, दैट इज +2. तो इसका मतलब है ऑक्सीजन होगा O2 -2. सो दिस कंपाउंड इज BaO2 -2. O2 -2 का मतलब peroxide. So this is the only oxygen compound that exists in the form of peroxide. तो इसका मतलब है जब BaO2 यानी बैरियम पेरोक्साइड को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन बैरियम सल्फेट प्लस इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा वो होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बैरियम पेरोक्साइड. तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खाली वही ऑक्सीजन कंपाउंड्स पेरोक्साइड्स देते हैं जो खुद पेरोक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ऑक्साइड्स कैन नॉट गिव पेरोक्साइड, सुपरऑक्साइड्स कैन नॉट गिव पेरोक्साइड. सो पेरोक्साइड्स आर ओनली गिवन बाय दोज ऑक्सीजन कंपाउंड्स व्हिच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड फॉर्म. तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज बैरियम पेरोक्साइड. So this was all about the chapter hydrogen. Thank you so much. Hope that this helps you. Thank you. So we are going now start next chapter.